Good morning, class 10th English medium students. So today we start our new chapter in economics, chapter 15, economic development and planning. Okay, in this chapter we have to learn about the economic development in India and which type of planning we do for economic development. So in this lesson, first you have to know that what is the meaning of economic development. Okay, we have to learn about the meaning of economic development, and we are going to learn about meaning of economic development. Second one is the main characteristics of development. What type of characteristics development have? So the main characteristics of development. In this main characteristics, there are mainly three type of characteristics which we have learned in this lesson and we are going to learn in this lesson. First one is continuous process. Okay. Second is increase in national income and per capita income, and third one is proper utilization of all resources. Got it? So students, in this lesson, economic development in India or the economic development and planning, we have to learn about the meaning of economic development, the main characteristics of development, and today we just learn these two topics. So first of all, you have to know the meaning of economic development. What is economic development? Economic development क्या है? Economic यानी कि अर्थव्यवस्था, development यानी कि विकास. ओके, तो आर्थिक विकास, इकोनॉमिकली क्या विकास हुआ है या क्या विकास होता है या कैसे विकास होता है इन इंडिया, ये हमको समझना है और इसका हमको अर्थ समझना है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? सो मेनली इन मॉडर्न एज द पर्सन और द पीपल want to fulfill their basic needs. हमारे basic needs जो होते हैं वो क्या होते हैं? Food, clothes and shelter. These three are our basic needs. भोजन चाहिए, रहने के लिए आवास चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए. ये मौलिक आवश्यकताएं हैं एक मनुष्य की. So the basic needs of the human beings and the education for their children and the other facilities for their family and all के लिए क्या होना चाहिए? They just have job. उनके पास जॉब होना चाहिए एंड दे अर्न मनी. वाई? बिकॉज दे वॉन्ट टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स. दे गिव द एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रंस एंड अदर फैसिलिटीज फॉर देयर फैमिली एंड ऑल. ओके, सो पर्सन व्हेन वॉन्ट टू फुलफिल देयर basic needs, want education, want other facilities for their children and family, they just have employment and earn money, and this simple process is known as economic डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक्स. क्या मतलब हुआ इसका? कि व्यक्ति अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए और साथ ही साथ जो अदर फैसिलिटीज हैं, जो दूसरी सुविधाएं हैं, उनको प्रोवाइड कराने के लिए जॉब करता है. एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी है उसके पास, और जब जॉब करता है तो वो क्या करता है? मनी अर्न करता है, पैसे कमाता है, और इन पैसों से ही वो अपनी मौलिक आवश्यकताएं, अपने परिवार की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है. Okay, so the basic needs, the facilities for their family and the education for their family, the person earn money, okay, and fulfill their basic needs and all. So this process is simply known as economic development in economics. Got it? आया समझ में? Economic development in economics क्या है? व्यक्ति के द्वारा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए सभी तरह की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति और साथ ही साथ अदर सुविधाओं, जो दीगर और दूसरी सुविधाएं हैं, उनको पूरा कराने के लिए काम करना, कार्य करने के थ्रू पैसों को कमाना और उन पैसों से सारी सुविधाओं को अर्जित करना. ये एक नॉर्मल है हमारा आर्थिक विकास, या आर्थिक विकास जो अर्थशास्त्र में है वो कैसे होता है. वो यही सिंपल तरीका है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक्स. गॉट इट? ये आया आपके समझ में? Now the second topic in this lesson is the main characteristics of economic development or the main characteristics of development. Simple क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का विकास या किसी भी स्थान का विकास किस पर डिपेंड करता है? वहां के अवेलेबल रिसोर्सेज पर. It's depend on the available resources. क्या साधन उपलब्ध हैं, क्या साधन दिए गए हैं, कितने साधनों के थ्रू किस तरह का विकास हो सकता है, ये सारी बातें जो हैं ये डिपेंड करती हैं वहाँ के जो भी एरिया है या जो भी पर्सन है उसके पास उपलब्ध साधनों से, रिसोर्सेज से. ओके, सो यहाँ पर जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट में है कंटिन्यूअस प्रोसेस.
दैट मीन्स कि जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली क्रिया है। यदि ये क्रिया रुक जाती है, ये प्रोसेस स्टॉप होती है, तो ये डेवलपमेंट की क्रिया नहीं कहलाती। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई पर्सन है वो स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड, हायर स्टैंडर्ड से एजुकेशन गेन कर रहा है, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, ट्वेल्थ, एंड आफ्टर ट्वेल्थ दे ही डू हिज ग्रेजुएशन एंड ऑल, अपनी जो भी एजुकेशन है वो गेन कर रहा है, दैट मीन्स प्रॉपरली उसका एक प्रोसेस के थ्रू कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रही है और उसका डेवलपमेंट होता जा रहा है। यदि यहाँ पर ये डेवलपमेंट बीच में रुक जाता है, ये प्रोसेस बीच में रुक जाती है, तो ये प्रोसेस डेवलप्ड प्रोसेस नहीं कहलाएगी। सो डेवलपमेंट का एक जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार क्रिया का होते रहना। तभी जब लगातार कोई भी क्रिया या कोई भी कार्य होता रहता है तो उसमें ऑटोमेटिकली विकास होता है। गॉट इट? सेकेंड पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटल इनकम। इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो व्हेन द पीपल अर्न मनी, they earn money, their income increase due to their hard work and all. So what happened, जब वो पैसे कमाते हैं उनकी आय में वृद्धि होती है, तो ऑब्वियस सी चीज है जो देश की बात राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, उसमें भी अपने आप डेवलपमेंट इंक्रीमेंट होता है। सो क्या है सिंपल इसका टर्म क्या है डेवलपमेंट का कैरेक्टरिस्टिक, कि जो इंक्रीमेंट है वो होना बहुत जरूरी है नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम में। यदि व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है और आय को अर्जित कर रहा है, तो वो आय जैसे जैसे डेवलप होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, देश का विकास अपने आप होता जाएगा, डेवलपमेंट जो है वो अपने आप होता जाएगा। सिंपल है। तो इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटल इनकम इज द सेकंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस economic development. Okay, and the third one is proper utilization of all resources. That means जो भी resources, अभी आपको पता है हमने ज्योग्राफी में लेसन 1 और लेसन 2 पढ़ा है, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। फर्स्ट लेसन में हमने नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े हैं, वाटर, सॉइल, फायर एंड ऑल, एंड सेकेंड लेसन में हमने डिस्कस किया है अबाउट द मैन मेड रिसोर्सेज। ओके, जिसमें मिनरल्स हैं, जिसमें आपके अदर रिसोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर, क्रॉप्स एंड ऑल हैं। सो ये है मैन मेड रिसोर्सेज। These two types of resources, that means natural resources as well as the man-made resources, इन दोनों resources का proper रूप से utilization, इनका proper तरीके से इस्तेमाल करना भी development की एक main characteristic है। इनका proper रूप से utilization करने के बाद ही हम किसी भी चीज में विकास हासिल कर सकते हैं। ओके, देश का विकास नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम पे बेस्ड है, कंटिन्यूअस प्रोसेस पे बेस्ड है, एंड एज वेल एज इट्स depend or based on the proper utilization of natural resources. Got it, students? So in this lesson today we discussed about the economic development, meaning of economic development in economics. What is the meaning of economic development in economics? That a person want to fulfill their basic needs, they want to facilities for their family, they want the education for their children, so they earn money and so they do job actually and they earn money, and this process is known as economic development in economics. Okay, and the main characteristics of the development is continuous process, first one. Second is the increase in income, national income and per capital income, and third one is the proper utilization of all the resources. Okay students, so today you just write down the notes about the economic development, the meaning of economic development, and as well as the characteristics of economic development, and further we will discuss in our next video.